हाँ जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ BA B.Ed ਫਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ B.Ed ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ATT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ, DLED ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਇਟਸ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਸਕੋਪ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਸਕੋਪ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸੈਲਫ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਿਸਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਰਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਆਂਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਵਟ ਇਜ਼ ਫਿਲੋਸਫੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲੋਸਫਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਤਾਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨਾਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਕੋਇਨ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਫਿਲੋਸਫੀ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੌਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ ਮੈਨ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਇਟ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਐਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਫਟਰ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਸਰਚ ਫॉर ਨੌਲੇਜ। It is a method of critical thinking and reflective thinking. It is a way of life. ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਟਰਮਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈਗੀ। ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਲੋਸ ਐਂਡ ਸੋਫੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲੋਸ 2 ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਫਿਲੋਸ ਐਂਡ ਸੋਫੀਆ। ਫਿਲੋਸ ਮੀਨਸ ਲਵ, ਸੋਫੀਆ ਮੀਨਸ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਵ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਤ ਹੋਣਾ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਪਰਟ ਵਿਊਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵਿਊਜ਼ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫੀ। ਐਕਸਪਰਟ ਵਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਊਟਰ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡੀਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਿਸ਼ੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, FICHTE। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਫਿਲੋਸਫੀ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਏਮਸ ਪ੍ਰਾਈਮਰਲੀ ਐਟ ਨੌਲੇਜ। ਤਾਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ਼ਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਟਰੂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ
मदर की गल करिए तो फिलोसफी है, मतलब सारिया फिलोसफी ते डिपेंड करदियां ने। ये सीजरो की डेफिनेशन हैगी। 3 डेफिनेशनस ने जिन्होंने आप एक्सपर्ट व्यूज़ के विच लिखिया गया। नैक्सट आ गया बच्चे अपना नेचर ऑफ फिलोसफी। नेचर ऑफ फिलोसफी फस्ट पॉइंट है कॉम्प्रीहेंसिवनैस। कॉम्प्रीहेंसिवनैस तो की भाव है सर्व व्यापकता, हर एक आसपैक्ट कवर करती है। ठीक है, किसी भी जिहड़ा अपना डेली लाइफ का अपने जिन्ने भी अपने पार्ट आ गए, चाहे सोशल आ गए, इमोशनल आ गए, परसनल आ गए, फिजिकल आ गए, जिन्ने भी तरह के आ गए, हर एक आसपैक्ट में फिलोसफी डील करती है। ठीक है, सैकेंड आ गया एक्सटेंट और रेंज ऑफ व्यू। मैं जिवें पहला भी कहा, हर एक परसन की फिलोसफी अपनी वक्री वक्री है, हर एक की आपकी रेंज है। रेंज समझते हो भी सोचण तक की पहुँच है, कोई कितों तक सोच रहा है ना, एक रेंज है उस चीज़ की। वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसिस, नैक्सट पॉइंट वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। हर एक बंदा तजुर्बियां तो सीखता है, तजुर्बियां के अकॉर्डिंग वो फिलोसफी बनती है। नवे नवे तजुर्बे, वक्रे वक्रे तजुर्बियां तो की बन जाती है, फिलोसफी बन जाती है। सर्च फॉर ट्रुथ है, आप इसकी डेफिनेशन च भी पढ़िया, सच की भाल फिलोसफी है। ठीक है, नैक्सट पॉइंट आ गया साइंस ऑफ साइंसिस। जिन्नियां भी विज्ञान आ गए, ये अगे उन्होंने भी विज्ञान है ना, उन्होंने भी माँ आप सिंपल टर्म्स के कहिए फिलोसफी। ठीक है, उस तो बाद आ गया स्कोप ऑफ फिलोसफी। बेसिकली बेटा स्कोप की होंदा, आप साइकोलॉजी की क्लास में भी डिस्कस किया, एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो आप स्कोप किया सी। स्कोप होंदा हैगा एरिया की हैगा, कित्थों तक ये पहुँच रखती है, कित्थों तक कवर करती है। ठीक है, तो ये स्कोप नूं बेसिकली 3 पार्ट्स डिवाइड किया गया। फस्ट है फील्ड ऑफ फिलोसफी साइंसिस, सैकेंड है फील्ड ऑफ फिलोसफी एज कॉम्प्रीहेंसिव साइंसिस, थर्ड हैगा सब्जैक्ट मैटर ऑफ फिलोसफी। 3 मेन पार्ट आ गए। तो एक गल होर बेटा, कोई जरूरी नहीं जिहड़े पॉइंट्स आपां इत्थे लिख रहे हैं स्कोप दे विच, जिहड़े पॉइंट्स आपां कर रहे हांगे तुहानूं हर बुक चों ही मिलन, है ना। मैं बेसिकली एम.एड दियां बुक्स फॉलो कर रही हांगी, क्योंकि ताकि थोड़ा थोड़ा जिहा एरिया वाइडर हो सके सोचण दा, है ना। तुहानूं थोड़ा जिहा ज़्यादा तो एक्सट्रा मिले बाकी बच्चों नालों, जिहड़े सारे बच्चे लिख के आउणगे। आपां थोड़ा जिहा उहनां नालों वखरा अटैम्प्ट करने की कोशिश करांगे पेपर च, क्योंकि जेकर आपां वखरा प्रेजेंट करांगे तां ही अपने नंबर ने जिहड़े ओह दूजिआं नालों वखरे आउणगे, है ना। तो हुण फस्ट पॉइंट है फील्ड ऑफ फिलोसफी साइंसिस। आपां तिन्नां नूं डिटेल्स पढ़दे हां। द स्कोप ऑफ फिलोसफी इनकलूड्स मैटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी ते एक्सियोलॉजी। जिहड़ा फील्ड हो गया फिलोसफी साइंसिस दे विच मेन फिलोसफी दियां 3 ब्रांचेस आ गई, जिहदे च इहदा स्कोप मेन डिवाइड किया जाता है मैटाफिजिक्स, एपिस्टोमोलॉजी ते एक्सियोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी की है ज्ञान, किहदे नाल डील करदा, नॉलेज नाल डील करदा है ये। ठीक है, मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच है ये फिलोसफी की। तुसीं इहनूं थोड़ा जिहा अगे एक्सप्लेन कर सकते हो कि बेशक इहदियां 3 ब्रांचेज ने, पर जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो एपिस्टोमोलॉजी है। सैकेंड आ गया इट एक्सप्लेन नेचर ऑफ नॉलेज। ज्ञान का नेचर की है, ओरिजिन ऑफ नॉलेज कित्थों आया ज्ञान, टाइप्स ऑफ नॉलेज किन्ने तरह का ज्ञान हुंदा है, मैथड्स ऑफ नॉलेज किहड़े मैथड्स ने ज्ञान प्राप्त करने दे, लिमिट्स ऑफ नॉलेज दायरा की है एक ज्ञान का, सोर्सिज ऑफ नॉलेज कित्थों ज्ञान के सोमे की ने प्राप्त किए। मतलब नॉलेज नाल कुछ भी रिलेटेड है, चाहे वो सोर्सिज ने, लिमिट्स ने, ओरिजिन है, मैथड्स है, हर एक चीज़ नाल किहड़ी जिहड़ी ब्रांच है डील करती है वो हैगी एपिस्टोमोलॉजी। ठीक है, हुण जिवें इहदे च आपां मेन क्वेश्चनस किहड़े कंसर्न करते हैं जिन्हां नाल एपिस्टोमोलॉजी डील करती हैगी। वट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज, मतलब इहदा आंसर कौन दूगा, एपिस्टोमोलॉजी। हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज, सानूं ज्ञान कित्थों प्राप्त हुंदा, इहदा आंसर कौन दूगी, किहड़ी ब्रांच दूगी, फिलोसफी दी एपिस्टोमोलॉजी। वट इज़ ट्रू और रियल नॉलेज, ये आपां नूं कित्थों पता लगूगा, एपिस्टोमोलॉजी तो पता लगूगा। ठीक है राजे, ये की सीगा एपिस्टोमोलॉजी। सैकेंड आ गया मैटाफिजिक्स। मैटाफिजिक्स आ गया इट इज़ द स्टडी ऑफ रियलिटी, सच्चाई की है, सच की है। जिवें आपां किया फिलोसफी की है सर्च फॉर ट्रुथ, है ना, मतलब सर्च फॉर रियलिटी। तो ओहदी किहड़ी ब्रांच फिलोसफी दी इस चीज़ नाल डील कर रही है, मैटाफिजिक्स। किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की हैगी। इट स्टडीज़ द ओरिजिन, नेचर एंड डेस्टिनी ऑफ मैन। एक जिहड़ा मैन है वो आया कित्थों है, ਉਹਦਾ नेचर किवें दा है, ਉਹਦੀ डेस्टिनी की है, ये सारिया चीज़ों नाल किहड़ी फिलोसफी डील करती है, मैटाफिजिक्स डील करती है। इट्स सबजैक्ट मैटर इज़ टू नो अबाउट सोल, बॉडी, गॉड एंड नेचर। अपनी आत्मा बारे जानना,
अपनी बॉडी बारे जानना, परमात्मा बारे जानना ते कुदरत बारे जानना, इन सारिया चीज़ां, क्योंकि ये सारिया चीज़ां बेटा सच ने ते मैटाफिजिक्स सच नाल ही डील करता है। नेचर, कुदरत तो वड्डी सच्चाई कुछ भी नहीं, परमात्मा तो वड्डी सच्चाई कुछ भी नहीं, है ना। अगे दियां कुछ स्टडीज़ नेगियां जिन्हां दे नाम तुसी एज सच पेपर च लिख के आ सकदे होगे। ओंटोलॉजी जिन्हों आपां अल्टीमेट रियलिटी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी जिन्हों आपां मिस्ट्रीज़ ऑफ वर्ड कहा जाता है कि किहड़े मिस्ट्रीज़ आ गई वर्ड दे विच। कमोगोजी स्टडी ऑफ क्रिएशन, कुछ क्रिएट करना। एस्ट्रोचोजी नेचर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तुसी इन्हां चों कोई भी 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 याद रहिंदे ने 4 लिख लो। ये सिर्फ स्टडीज़ ने, तुसी एक्सट्रा पेपर च इन्हां नूं लिख सकदे हो। थर्ड आ गया एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी बेटा डील करता है बेसिकली 3 चीज़ों नाल, एथिक्स, एस्थैटिक्स ते लॉजिक। एथिक्स की है, वट इज़ राइट, वट इज़ रॉन्ग। बेसिकली जेकर आपां एथिक्स नूं समझीए तो एथिक्स की है, राइट एंड रॉन्ग। जो थोनू पता है गलत की है तो सही की है, जे आपां कहिए मॉरल वैल्यूज़ होंदियां ने जिवें, है ना, उहदे नाल किहड़ी चीज़ डील करती है, एथिक्स। एस्थैटिक्स की हुंदा है, एस्थैटिक्स वर्ड कईयां लई नवां हो सकता है। एस्थैटिक्स हुंदा है जिन्हां नूं ब्यूटी दी परख हुंदी है कि सुंदरता की है, आउटर लुक ते नहीं जाती, नेचर की सुंदरता की है ना, वो की है एस्थैटिक्स। जिन्हां नूं मतलब पता हुंदा है, जिवें कहंदे हुंदे भी हीरे की असली पछाण जौहरी नूं हुंदी है, उवें जिहड़े एस्थैटिक सेंस वाले लोग हुंदे आ उन्हां नूं पता हुंदा एक्चुअली च ब्यूटी है कि, सुंदरता है कि। थर्ड आ गया राजी लॉजिक। लॉजिक तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है साइंटिफिक टर्म है जिहदे पिछे कोई ना कोई रीजन होवे, बिना सेंस तो जिहड़ी गल हुंदी है लॉजिकली नहीं हुंदी, मतलब जिहड़ी गल च कोई ना कोई सेंस होवे, रीजन होवे, वो की होगा, लॉजिक। तो जिहड़ी एक्सियोलॉजी हैगी बेसिकली वो इन्हां 3 चीज़ों नाल डील करती है। ठीक है, फिर आपां 2 पॉइंट होर पढ़े इस उत्ते, एक है फील्ड ऑफ फिलोसफी एज कॉम्प्रीहेंसिव साइंसिस। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਸਕੋਪ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫੀ ਇਨਕਲੂਡਸ ਦਾ ਸਿੰਥਸਿਸ ਆਫ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਾਇੰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, थर्ड तो लास्ट पॉइंट है सबजैक्ट मैटर ऑफ फिलोसफी। सबजैक्ट मैटर ऑफ फिलोसफी की लिखना है, द स्कोप ऑफ फिलोसफी क्लैरीफाइज इट्स सबजैक्ट मैटर। कि स्कोप तो आपां नूं पता लगता है फिलोसफी का सबजैक्ट मैटर की है, उहदे च की आ जाएंगे, कनकलूजन आ गया किसी चीज़ का, पोस्टूलेट्स आ गए। बेसिकली जिहड़े आ दोनों पॉइंट्स ने ऑलमोस्ट सेम ने, दोनों दे विच पोस्टूलेट्स की गल की गई हैगी। ठीक है, उपर दस्सिया गया, थल्ले उन्हां दा सबजैक्ट मैटर एज ए बन के आ जाता। ठीक है, ईजी नेगे राजे। उस तो बाद तुसी एंड ते कनकलूजन जरूर देना है, हर क्वेश्चन तो बाद कनकलूजन देना तुसी। कनकलूजन तुसी कोई डायग्राम बना सकते हो, थोड़ा जा पैराग्राफ लिख के कोटेशन लिख सकते होगे, है ना। तो जिमें आपां इत्थे तुसी, मैं सिर्फ डायग्राम बनाई है, उस तो पहला तुसी लिखोगे कि इन द अबव क्वेश्चनस वी हैव रिटन दैट फिलोसफी इज़ फलाना फलाना, एक्सपर्ट्स दा व्यू लिख सकते हो, एक दा चौदा नेचर के पॉइंट्स लिख सकते हो। वी कनकलूड विद द फॉलोइंग डायग्राम। फिलोसफी दी जिहड़ियां मेन ब्रांचेस सीगियां वो आ सीगियां, एपिस्टोमोलॉजी, मैटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, फिलोसफी ऑफ साइंसिस ते फिलोसफी ऑफ सबजैक्ट मैटर, जिहड़ियां इहदे मेन स्कोप दे पॉइंट्स सीगे। ठीक है, इहदे नाल तुसीं की करता, कनकलूड करता। उम्मीद है बेटा मैनूं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जे किसी ਨੂੰ कोई डाउट है तो तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। बाकी जेकर तुसीं चैनल ते फस्ट टाइम विजिट कर रहे होगे, नैक्सट वीडियोज़ तुहाडे तक पहुँच सकन, उहदे लई जुड़े रहो अपने चैनल दे नाल। जे तुहाडी कोई होर डिमांड है, तुसीं अपनी सबजैक्ट मैटर तो इलावा कुछ होर पढ़ना चाहुंदे हो, तो तुसीं मैनूं भी कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। धन्नवाद।